Hello everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel Dream Shiksha. Students, in previous session we have discussed chapter 3 Microsoft PowerPoint part 2 in which we have discussed about the topic how to open an existing presentation, how we can use built-in templates and how we create a presentation using a template, and we have also discussed how to use a design template. In today's session we will start with the topic viewing a presentation. So students, let's start with the session. Viewing a presentation. You can view your presentation in different formats such as normal view, slide sorter view and slideshow note pages. By default we always work in normal view. The view buttons are available in the presentation view group on the view tab. Now आप अपनी प्रेजेंटेशन को डिफरेंट फॉर्मेट्स में ओपन कर सकते हो या व्यू कर सकते हो, लाइक नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड शो एंड नोट पेजेस. So these are the views in which you can open your presentations. By default we always work in normal view. By default प्रोग्राम सेटअप करता है कि हम नॉर्मल व्यू में ही काम करते हैं. द व्यू बटन्स आर अवेलेबल इन द प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप ऑन द व्यू टैब. तो जो व्यू बटन है आपको कहाँ पे मिलेगी? प्रेजेंटेशन व्यू में जाके आप व्यू बटन यूज कर सकते हो. ओके, तो व्यू टैब रहता है, आप वहाँ से इसको यूज कर सकते हो. सो यू ऑल नो टैब ऑप्शन कहाँ होता है, आप वहाँ से व्यू टैब का ऑप्शन क्लिक करके आप चीज़ों को चूज कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, नॉर्मल व्यू. It is the main editing view which is used to write and design the presentation. So इसको आप मैन एडिटिंग ऑप्शन कह सकते हो, जो आपको राइट और डिज़ाइन करने के लिए यूज होता है प्रेजेंटेशन. ठीक. इन नॉर्मल व्यू यू कैन ऐड टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, एनिमेशंस एंड अदर इफेक्ट एज वेल. तो नॉर्मल व्यू में आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो, ग्राफिक्स ऐड कर सकते हो, साउंड्स ऐड कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो यूज एनिमेशन और अदर इफेक्ट, जो भी आप चाहो उसको ऐड कर सकते हो. You can also have a large view of an individual slide in slide pane. अब आपके पास large view होता है हर इंडिविजुअल स्लाइड का स्लाइड पेन में. ठीक है, तो आप हर चीज को इंडिविजुअली ओपन कर सकते हो. ठीक, एज सच इट इज shown here. Okay, now next, note pane is at the bottom to add the information which you want to share with the audience while slide is being displayed. तो note pane होता है आपके बॉटम में होता है, जिस पे आप इंफॉर्मेशन ऐड करते हो जो आप शेयर करना चाहते हो ऑडियंस के साथ जब आप स्लाइड को डिस्प्ले करते हो. ओके, सो हियर इज द क्लिक टू ऐड नोट्स which where you can enter a text or any information to share with your audience. An outline of the slide text and slide displayed as thumbnail all at the same time. So आप एक आउटलाइन स्लाइड टेक्स्ट की या स्लाइड जो भी है थंबनेल है, आप सभी को एक ही टाइम पे ओपनली देख सकते हो, जिससे चीज़ें और क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं. ओके, सो एज सच यहाँ बहुत सारी स्लाइड पेन है, आप इंडिविजुअली जिसको चूज़ करेंगे उसको आप यहाँ पे आसानी से देख पाएंगे, है ना. और यहाँ पे आप नोट्स प्रोवाइड कर सकते हो जिसको आप ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हो. फिर आप यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, ग्राफिक्स, साउंड, एनिमेशन, कोई भी इफेक्ट यूज़ कर सकते हो. देन यू गॉट मैनी ऑप्शंस दैट you can use Ctrl plus S to save your presentation. Then you can use Ctrl plus N to open a new presentation. You can also use Ctrl plus O to open a new presentation. और आपकी जो PowerPoint फाइल होता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .pptx. नाउ स्लाइड शो ऑप्शन, जिसमें आप स्लाइड्स को अच्छे से देख सकते हो. ओके, नाउ दिस इज आउटलाइन व्यू. वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, स्लाइड्स के टेक्स्ट को देख सकते हो. देन these are the options. Now next, slide sorter view. Now slide sorter view, we have lastly seen about normal view of a presentation जो कि इस तरीके का होता है. Now we will discuss about slide sorter view. It display a miniature view of all the slides in a presentation. In slide sorter view you can easily change the order of slide, copy or delete the slide, add transition, animation effect and set the timing of the slide. So अब यहाँ पे जो आपको स्लाइड दिखेगी उसका आपको मिनीचर व्यू दिखेगा, मतलब पूरा बड़ा नहीं दिखेगा. देखिए सारी स्लाइड्स अलग अलग दूर दूर दिख रही हैं, है ना. तो इस टाइप का व्यू दिखेगा आपको. ठीक. नाउ
इसका यूज़ करके आप कर क्या सकते हो, आप इजीली इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, आप कॉपी कर सकते हो, स्लाइड्स को डिलीट कर सकते हो, देन यू कैन ऐड ट्रांजिशन, आप ट्रांजिशंस को ऐड कर सकते हो, एनिमेशन इफेक्ट्स का यूज़ कर सकते हो, आप टाइमिंग डाल सकते हो स्लाइड्स में। तो इन सारी चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हो विद द यूज़ ऑफ स्लाइड सॉर्टर व्यू। To close a presentation and exit from PowerPoint, click on close button on the title bar। अगर आपको प्रेजेंटेशन क्लोज करना है या एक्सिट करना है तो आपके टाइटल बार में एक ऑप्शन होता है, ऐसे क्रॉस करके आप क्लोज बटन में क्लिक कर सकते हो। To close a presentation, you can also click on the office button and choose close option। So आप ऑफिस बटन एक ऑप्शन दिया होता है, ये दिया हुआ है ऑलरेडी, सॉरी ये दिया हुआ ऑफिस बटन ऑप्शन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ऑप्शंस आएंगे, वहाँ से आप क्लोज ऑप्शन को चूज कर सकते हो। टू एक्सिट पावरपॉइंट एप्लीकेशन, क्लिक ऑन ऑफिस बटन, क्लिक एक्सिट पावरपॉइंट ऑप्शन। आप क्या कर सकते हो, ऑफिस बटन में जाके एक्सिट का ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप एग्जिट कर सकते हो। बात है स्लाइड सॉर्टर व्यू की, इसके थ्रू आप इजिली ऑर्डर को चेंज कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो स्लाइड, एनिमेशन सेट कर सकते हो, ट्रांजिशन सेट कर सकते हो और टाइमिंग भी ऐड कर सकते हो। सॉरी, ओके। नाउ नेक्स्ट, select the view tab and click on the slide sorter button in the presentation view group। now how you can open, आपको view tab पे click करना होगा, then you will click on slide sorter button in the presentation view group। you will see all the slide in your presentation and a thick border around the selected slide। तो आप सारी slides को देख सकते हो प्रेजेंटेशन में और सबके आसपास एक थिक बॉर्डर होगी। सी एक थिक बॉर्डर सभी में है, ठीक। तो ये थिक बॉर्डर आपको दिख रही होगी, जिसको आप चूज कर रहे हो उसमें तो बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक। सो इन दिस वे यू कैन यूज स्लाइड सॉर्टर बटन इन द presentation view group। you can easily switch between the different view by selecting the option present in the status bar। आप स्टेटस बार से इजीली स्विच कर सकते हो डिफरेंट व्यू में बाय सेलेक्टिंग द ऑप्शन प्रेजेंट इन द स्टेटस बार। स्टेटस बार में ऑप्शंस होता है, आप इजीली डिफरेंट व्यू की तरफ स्विच कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज स्लाइड शो व्यू। दिस व्यू डिस्प्ले वन स्लाइड एट अ टाइम ऑन अ फुल स्क्रीन। अब विद द यूज ऑफ स्लाइड शो व्यू आप एक स्लाइड एक टाइम पे देख सकते हो पूरी स्क्रीन में। इट शो ऑल द स्लाइड ऑफ प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग ईदर फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड और द करेंट स्लाइड। तो आप सारी स्लाइड्स को वन बाय वन देख सकते हो आसानी से। आप चाहे फर्स्ट स्लाइड से शुरू कर सकते हो या करंट स्लाइड, जहां से आप चाहें वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। इस पे आप फुल स्क्रीन में चीज़ों को देखोगे और एक टाइम पे एक ही स्लाइड्स को देखोगे, ओके। क्लिक ऑन द, मेनली प्रेजेंटेशन का जब हम यूज़ करते हैं या प्रेजेंट करते हैं स्लाइड तो हम यही करते हैं जो अभी मैं कर रहा हूँ आपके साथ, प्रेजेंट कर रहा हूँ तो एक ही स्लाइड का एक टाइम पे यूज़ कर रहा हूँ, ओके। To view slideshow, click on the slideshow button on the status bar or view slideshow। तो आप व्यू ऑप्शन के थ्रू जाके भी स्लाइड शो का ऑप्शन चूज कर सकते हो और आपके स्टेटस बार में भी एक ऑप्शन होता है इस टाइप का स्लाइड शो का, तो यू कैन ऑल्सो चूज दैट वन। क्लिक ऑन स्लाइड शो टैब एंड सेलेक्ट फ्रॉम बिगनिंग ऑप्शन। तो आप स्लाइड शो टैब में क्लिक करोगे, है ना, क्लिक ऑन स्लाइड शो टैब, देन यू विल यूज बिगनिंग ऑप्शन ताकि आप बिगनिंग से प्रेजेंटेशन यूज कर पाएँ या देख पाएँ। यू कैन ऑल्सो यूज F5 की टू व्यू द स्लाइड शो। आप F5 की का यूज़ करके भी अपनी प्रेजेंटेशन या स्लाइड शो को चालू कर सकते हो या स्टार्ट कर सकते हो। टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, क्लिक ऑन द माउस बटन, यूज एंटर स्पेस बार की। तो अगर आपको नेक्स्ट स्लाइड में जाना है तो आप सिंपली एक माउस का क्लिक कर सकते हो। देन यू कैन ऑल्सो यूज एंटर और स्पेस बार की, आप स्पेस और एंटर का भी यूज कर सकते हो नेक्स्ट स्लाइड में जाने के लिए। टू क्विट द स्लाइड शो व्यू, अगर आपको स्लाइड शो व्यू को बंद करना है या क्लोज करना है या एग्जिट करना है, व्हाट यू कैन यूज, यू सिंपली हैव टू प्रेस द ESC की ऑफ योर कीबोर्ड। Now again note page view, last view is note page view। Note page view is available, so note page view is available on the view tab। It display the note page for the selected slide where you can create additional note for the current slide। These notes are helpful while showing the presentation। सो नोट पेज आपके व्यू टैब में ही होता है। ये एक तरीके से आपको हेल्प करता है कि जैसे आपको अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखानी है स्लाइड के साथ साथ तो आप इसके थ्रू दिखा सकते हो, है ना। दीज नोट्स आर हेल्पफुल वाइल शोइंग द प्रेजेंटेशन। तो ये नोट्स हेल्पफुल हो जाते हैं जब आप प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हो या कुछ प्रेजेंट करते हो, ऑडियंस के लिए हेल्पफुल हो जाते हैं और ज़्यादा, ठीक है। नाउ पॉइंट्स एट अ ग्लांस, अ प्रेजेंटेशन इज अ कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स अरेंज इन अ सिक्वेंशियल मैनर टू एंटरटेन, मोटिवेट, कॉन्वे, परस्यूड और गिव इन्फॉर्मेशन। तो प्रेजेंटेशन क्या है, एक कलेक्शन ऑफ
स्लाइड्स है जो अरेंज होता है सिक्वेंशियल मैनर में, किसके लिए, एंटरटेन करने के लिए या मोटिवेट करने के लिए, टू कन्वे अ मैसेज, और अपन एजुकेशन पर्पस में भी यूज़ कर सकते हैं टू प्रोवाइड वेरियस इन्फॉर्मेशन। A blank presentation uses the default setting for text and color. Blank presentation में आप default setting तो होती ही है text और color की, उसको आप यूज़ करते हो, but as such if you want to use of your own choice you can also use. Placeholder are boxes with dotted or hashed mark border. Placeholder क्या होता है, एक तरीके से dotted box होते हैं, है ना, mark border के साथ, ठीक, आपने देखे होंगे। Now MS PowerPoint सेव अ फाइल विथ एन एक्सटेंशन PPTX। MS PowerPoint क्या करता है, PPTX के एक्सटेंशन से फाइल को सेव कर सकता है। ये प्लेस होल्डर बॉक्स ऐसा होता है, हैश्ड और डॉटेड लाइन ऐसा, ओके, तो इस टाइप का होता है, ठीक। Now, the templates are the set of pre-designed format that include text, layout, color scheme, etc. that help in creating a beautiful presentation. तो templates क्या होते हैं, एक pre-designed format होते हैं जो कि हमें पावर पॉइंट से प्रोवाइडेड होते हैं, जिसपे टेक्स्ट होते हैं, लेआउट्स होते हैं, कलर स्कीम्स होती है, तो ये हेल्प करते हैं हमारी प्रेजेंटेशन को और भी ब्यूटीफुल बनाने में, ठीक है, और इफेक्टिव बनाने में। द नॉर्मल व्यू, स्लाइड शोल्डर व्यू एंड स्लाइड शो व्यू बटन्स आर अवेलेबल ऑन द स्टेटस बार। जो नॉर्मल व्यू बटन्स होती हैं, स्लाइड शोल्डर व्यू बटन होती है और स्लाइड शो व्यू बटन्स होती है, ये सभी आपको स्टेटस बार में अवेलेबल होती है। यू कैन ऑल्सो चूज दिस बटन फ्रॉम स्टेटस बार। आपको व्यू टैब में जाने की जरूरत नहीं है, आपको स्टेटस बार में भी ये बटन मिल जाएगी। तो इस तरीके से आज हमने आपका चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में आपको कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली थी तो उनको हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे, बताएंगे कैसी चीज़ें क्या होती है। तो एक लास्ट सेशन होगा जो कि आपका लैब एक्टिविटी सेशन होगा और आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट है, any query, you can simply comment me on my comment box. Okay, so guys, that's all for today. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.